Okay. I want to thank you first for allowing me to be with you. मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। I realize that some of you don't know who I am. आप में से ज़्यादा नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। I'm a member of this church. I've been here for about 5.5 years. मैं इस चर्च का मेंबर हूँ और 5.5 साल से इस चर्च में आ रहा हूँ। Before that, from the United States. कि जब मैं USA से वापस आया था। And so I teach at a international school, not too far from here. मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता हूँ जो कि ज़्यादा कुछ फासले पे नहीं है। But Pastor Ricky, the pastor here, has invited me many times to teach. जो इसके भी चर्च है वो काफ़ी दफ़ा मुझे इनवाइट करते हैं कि मैं यहाँ पे मनाती करूँ। So it's a pleasure to be with you and to teach tonight. मैं खुद बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। And I don't have a particular message tonight of love. मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है प्यार के बारे में कहने के लिए। However, this entire book really is a love letter to us. लेकिन मेरे पास कलाम है जो जहाँ से हम प्यार के बारे में सीख सकते हैं। But the text that I chose tonight is Hebrews chapter 1. इब्रानियों की किताब पहला बाब। And I want to cover verses 1 through 3. पहली आयत से तीसरी आयत तक। And I will read in English. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से ये हिस्सा और तरह तरह नबियों की मार्फत काम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत काम किया, जैसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो इसके जलाल का परतों और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के काम से संभालता है। वो गुनाहों को धो के आलम वाला पर कबीरिया की दहनी तरफ जा बैठा। आमीन। This passage, actually the book of Hebrews, but especially this passage, is written to show the supreme excellency of Jesus Christ. जो हमें इन याद में मिलता है ये हमें यीशु मसीह के बहुत अच्छे अल्फाज बताए गए हैं। And so that's what we'll talk about tonight. What I'll do is I'll go through these verses and we'll talk about the message that God has given us here. आज हम इस हिस्से के बारे में सीखेंगे और जो खुदा ने कलाम में हमें ये बातें बताई हैं इसके बारे में जानेंगे। So again, it starts out. It talks about many times and in many ways. काफ़ी दफ़ा जो कि ये बातें काफ़ी तरह के तरीके से और काफ़ी बार बताई गई थी पहले भी। So over the course of about 1,800 years, God spoke to people through many ways. 1800 साल पहले खुदा ने ये कलाम लोगों से किया था काफ़ी हिस्सों में। Meaning God was not silent. और काफ़ी लोग इस बात पे चुप रहे थे। It was frequent and He did so in many ways. और खुदा ने ये बहुत से तरीकों से लोगों पे ये कलाम जाहिर किया। Sometimes in revelation, direct revelations, sometimes in visions, sometimes in dreams. काफ़ी दफ़ा मुकाशवा की सूरत में, काफ़ी दफ़ा ख्वाबों की सूरत में, काफ़ी दफ़ा तरह के और तरीकों से ये कलाम जाहिर किया लोगों पे। And if you remember all the way back in the beginning, in the book of Genesis. अगर आप जानते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें इसका रेफरेंस मिलता है। In Genesis 3, we first hear about a Savior, Jesus Christ, who would come. तीसरे बाब में पैदाइश के हमें पहली बार यीशु मसीह का ये वाक़या पता लगता है कि यार यीशु मसीह आएंगे इस दुनिया पे। Now at that point it was veiled because the reference was talking about the seed of a woman. और वहाँ पे जो औरत के पेट से पैदा होगा एक बच्चा उसका रेफरेंस हमें मिलता है। But that was indeed Jesus Christ. ये यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है। And then later, as we go through the Old Testament, we see in Isaiah that Jesus would come from a virgin. और जब हम आगे बढ़ते हैं कलाम में तो पुराने नामे में हमें ये साया नबी की मार्फत पता लगता है यीशु मसीह के बारे में। And then also in Isaiah we see that Jesus would have to suffer.
और हम देखते हैं पढ़ते हैं उसमें कि यीशु मसीह को जो परेशानियां हैं जो मुसीबतें हैं वो सहनी पड़ेगी। So in other words, the revelation that came to humans was progressive, little by little. मुकाशफा जो कि जब यूहन्ना पे ज़ाहिर हुआ तो वो इन सारे हिस्सों से गुजरता हुआ। God did not paint the whole picture right at the beginning. He gave little pictures, revelations, little by little through the course of humanity. खुदा ने शुरू में ही सब जो तमाम वाक़िया था ज़ाहिर नहीं किया, इसे थोड़े-थोड़े हिस्सों में ज़ाहिर किया, मुकाशफा में इसे डिटेल में बताया। So here's the question: how are we to know God? एक सवाल है कि हम किस तरह खुदा को जानते हैं? Do we have something within us that tells us about God automatically? क्या हमारे अंदर कोई चीज़ है, ज़मीर है जो कि हमें खुदा के बारे में बताती है? Now, of course, we are created in the image of God, बेशक हम खुदा की शख्सियत पे पैदा किए गए हैं, but we really don't have anything that gives us information about God directly. या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें जिसे इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ये डाटा दिया जा रहा है। So anything that we know came from God directly. जो चीज़ें हम जानते हैं वो खुदा की तरफ से सीधी आती हैं हमारे पास। In other words, He must reveal Himself to us. ये इसी तरह है कि खुदा हम पे ज़ाहिर करता है अपने आप को। And you see that in this verse. It says that God spoke. और जैसे कि हमें पता लगता है कि खुदा ने बात की। And further, it says that God spoke through the prophets. और जब आगे पढ़ते हैं तो खुदा ने तरह-तरह के नबियों की मार्फत काम किया। Now, of course, prophets are those individuals chosen by God to reveal something that we didn't know before. नबी ऐसे चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए या बताने के लिए। So these were the main vessels that God chose to reveal Himself to humans. ये चुने हुए लोग थे जिनके वसीला से खुदा ने अपने आप को जाहिर किया दूसरे लोगों पे। And if we think about that, that is quite remarkable that God would use a human, a fallen human, a sinful human, to reveal Himself. ये जब हम ये बात सुनते हैं कि यीशु मसीह एक इंसान की सूरत में पैदा हुए तो ये बहुत बात हैरान करती है। How do we know that this human spoke correctly about God? ताकि इसलिए कि जब इंसान से एक इंसान की सूरत में बात की जाए तो वो अच्छे से समझ सकता है। Well, God gave us the answer in the text. खुदा ने हमें इस बात का हमें रेफरेंस दिया है कलाम में भी। Early in the Old Testament, He said, if someone prophesies about me and it doesn't come true, then they're a false prophet. और कलाम में हमें पुराने अहद में मिलता है कि अगर कोई मेरी मुनादी करता है, मेरी पेशन गोई करता है, अगर वो पेशन गोई सच नहीं होती, तो वो झूठे नबी हैं। God takes it seriously when He reveals Himself. He wants it to be accurate. खुदा बहुत ध्यान से इस काम को जाहिर करता है। And if it was not accurate, then that was a false prophet. अगर वो नबी जिनकी मार्फत हमें पता लगता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, अगर इस तरह ना होता तो वो नबी ना कहलाते। And so we continue. It says that God spoke to our fathers by prophets, but in these last days He has spoken to us by His Son. पहली आयत में लिखा है अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा और तरह-तरह नबियों की मार्फत काम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत काम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। Now the but here, when it says but, is a major transition. जब यहाँ पे लिखते हैं कि Major change. जब ये इन आयतों में हमें पता लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। In other words, God used to reveal Himself in this way, but now He reveals Himself through the Son. अभी पहले जो पुराना ऐतनामा था, पुराने ऐतनामे में हमें पता लगता है कि नबियों की मार्फत यीशु मसीह की पेशन गोई की जाती थी, लेकिन नए ऐतनामे में यीशु मसीह को खुद इंसान की सूरत में भेजा। Why has things changed from the past to now since Jesus Christ has been here? माजी से जो होने वाला था वाक़या, उसमें बहुत मुख्तलिफ वाक़या हुआ। It's because God, or Jesus Christ, reflects the actual glory of God. इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह जो हैं, यीशु मसीह जो खुदा है, खुदा की शख्सियत का अक्स थे। In other words, the prophets, they were actually sinful people, sinful humans. इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो नबी थे वो गुनाहगार थे। Now, granted, God spoke through them. खुदा ने उनके ज़रिए ज़रूर बात की, but He did not give them His glory. लेकिन उन्हें अपनी जो एक ग्लोरी है वो नहीं दी। But in Jesus Christ, He is the full glory of God. लेकिन जो यीशु मसीह है वो हमें जो खुदा है, खुदा की तशबीह मिलती है उनसे। And so we continue. It says, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world.
उस जमाना के आदम ने हमसे बेटे की मार्फत काम किया, जिसने उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। And an heir here, I think all of you know what an heir is. An heir is an individual that receives from a parent usually after a death. एक जैसे कि हमें पता लगता है कि हवा क्या होती है, हवा ऐसी चीज है कि जो हम सब महसूस कर सकते हैं। But in this case, Jesus Christ is the heir because he is the creator. यहाँ पे जो यीशु मसीह पेश किया जा रहा है वो ही चीजें बनाने वाला है। We see here that Jesus Christ, and also in Colossians 1, that Jesus Christ is actually the creator. हमें कुलुस्सियों की किताब में पता लगता है कि यीशु मसीह ये दुनिया बनाने वाले हैं। Everything is his. जो भी इस दुनिया में चीजें हैं वो सब यीशु मसीह के जरिए हैं। There's no part of this world, no part of this universe that doesn't belong to Jesus Christ. कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि यीशु मसीह की नहीं। So Jesus Christ is the heir of all that was coming to him. यीशु मसीह ने जो सी हमें चीजें इनके नजर आती हैं, ये सब यीशु मसीह क्या बनाई हुई चीजों का निचोड़ है। Remember we said that Revelation was progressive, little by little. जैसे कि हमने बात की थी कि मुकाशवा तमाम चीजों का जिक्र करता है। So a little bit more was revealed about Jesus as you went through the Old Testament, and then when Jesus came, all of that was fulfilled in Jesus Christ. जब हम मुकाशवा पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो पुराने अहदनामे में नबियों की मार्फत जो पेशन हुई थी उनका जिक्र मिलता है, और नए अहदनामे में जो वज़ीर उठाई यीशु मसीह ने हमारे लिए उसका भी वाक़या मिलता है। The Bible talks about the revelations in the Old Testament as types and shadows. कलाम मुक़द्दस जो मुकाशवा हम पढ़ते हैं वो पुराने अहदनामे में हमें जो निशानियां हैं उसकी सूरत में मिलता है। And so you can think of it this way: if you look at your own shadow, you may see your general shape of your body. ये इसी तरह है कि जिस तरह आप अपना अक्स देखते हैं तो उससे आपको अपने जिस्म का जो हिस्सा है वो पता लगता है। But you see no definition. लेकिन आप उसे क्लियर नहीं देख सकते, अपनी आंखें नहीं देख सकते, मुंह नहीं देख सकते। So the prophecies of the Old Testament, we see it like a shadow, but we really don't see a lot of definition. Jesus comes and we see the full glory. जो पुराने अहदनामे में हमें नबियों की मार्फत यीशु मसीह के बारे में सुनने को मिलता है वो भी इसी तरह है जैसे कि एक अक्स दिया गया था हमें, लेकिन इस अक्स की जो सही शख्सियत है वो हमें नए अहदनामे में मिलती है। So Jesus Christ fulfills everything. यीशु मसीह ने तमाम चीजों को पूरा किया। He is the heir of all. तमाम चीजों को बनाने वाला है। And the Bible confirms that. Even Jesus himself, you remember in Revelations, Jesus says, I am the Alpha and I am the Omega. जैसे कि हमें पता लगता है कि यीशु मसीह ने कलाम में कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। In other words, Jesus Christ is the full and complete revelation of God. इससे पता लगता है कि यीशु मसीह वही शख्सियत है जो कि खुदा की तरफ से भेजे गए थे इन चीजों को पूरा करने के लिए। Or you might think of it this way: Jesus Christ is God's first and last expression of himself. हम इस तरह कह सकते हैं कि यीशु मसीह खुद आए इस दुनिया में ताकि जो चीजें नबियों की मार्फत कही गई थी वो पूरी हों। Remember also that Jesus is a prophet, a priest, and a king. जैसे कि आपको याद है कि यीशु मसीह एक नबी थे, एक अच्छे बादशाह थे। So here we see again, Jesus is the prophet. He is the main message of the entire Bible. हम देखते हैं कि जो कलाम का निचोड़ है वो यीशु मसीह है। He is the priest. एक अच्छा नबी है। And of course there we think of the Old Testament priest that had to give an atonement for sin. और पुराने अहदनामे में जिस तरह देखते हैं कि एक जो नबी होता था पुराने अहदनामे में जो गुनाहों का कफारा होता था किस तरह देते थे। And so Jesus Christ, he gave himself as an offering. He suffered for us, gave himself as an offering for our sin. यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे गुनाहों की वजह से अज़ियत उठाई, सलीब पे मौत दी। And of course Jesus Christ is a king of kings. यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। With full authority. तमाम निजात के साथ। So Jesus Christ is more excellent, more full, more supreme than all of the revelations and prophecies before he came. जो भी नबी पहले आए थे पुराने अहदनामे में उनसे सबसे फजीलत रखने वाला जो नबी था वो यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह तमाम ताकत रखते थे नबियों से ज़्यादा। So that leads to another question. ये एक और सवाल की तरफ हमें लेके चलता है। Do we have any need for future revelation, new revelation? क्या हमें मुस्तक़बिल के लिए कोई किसी नबी की ज़रूरत है? And the answer to that, I think, in the Bible is plain: no. कलाम मुक़द्दस कहता है कि नहीं।
Why do we not need new revelation? इसलिए हमें नहीं चाहिए नया कोई नबी मुस्तकबिल के लिए, Because Jesus Christ is the full revelation of God. कि जो यीशु मसीह है वो मुकम्मल नबी थे, मुकम्मल बादशाह थे। When you look at Jesus, you see the image of God, actual nature of God. जब आप यीशु मसीह पे गौर करते हैं तो वो ऐसी शख्सियत है जो कि खुदा की हमें अक्स बताती है। He is no less God than God. He is a member of the Trinity, the second person of the Trinity. यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जो कि हमें तसलीस की याद दिलाते हैं। And again, this verse says that He is the radiance of the glory of God. और जैसा कि तीसरी आयत में लिखा है वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श पाकर सब चीजों को अपनी कुदरत के काम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम वाला पर कबीरा की दहनी हाथ पर जा बैठा। If He is the radiance, that means He generates His own radiance or glory. अगर यहाँ पे आलम है, अगर यीशु तो यीशु खुद तमाम चीजों को संभालता है। He is not a mirror, as if He's just reflecting God's glory. कोई ऐसा शीशा नहीं है जो कि अक्स दिखा रहा है हमें खुदा का। But He is God, so He's actually generating the glory of God on His own. ऐसा खुदा है जो कि हमें खुद खुदा की जो एक शख्सियत होती है वो बताता है। Again, after that it says that He is the exact imprint of His nature. और जैसा कि लिखा हुआ है तीसरी आयत में कि उसकी जात का नक्श होकर। I was very, very fortunate several months ago in December to meet with many of these gentlemen and talk about the attributes of God. काफी महीने पहले, काफी हफ्ते पहले मैं कुछ लोगों से मिला था और मैंने इन्हें खुदा की जो सिफत है उसके बारे में बताया था। Now, if you ever really want to be humbled, then teach about the attributes of God. और जिन लोगों ने इस चीज के बारे में सीखा था, जो खुदा की सिफात थी उनके बारे में सीखा था, अगर आप अच्छे हैं तो इन चीजों के बारे में दूसरों को भी सिखाएं। How can a person like myself teach about the attributes, who God is? मेरी तरह का एक गुनाहगार शख्स किस तरह खुदा की सिफात को बयान कर सकता है? It's not an easy thing. It's actually a scary thing. ये बहुत मुश्किल चीज है। But Jesus Christ, He is fully God, so all of the attributes of God belong to Him as well. यीशु मसीह एक पूरा खुदा है, जो खुदा की सिफात है वो ही यीशु मसीह की भी सिफात है। So when we read that God is love, Jesus is also love. जब हम पढ़ते हैं कि खुदा प्यार है, तो यानी कि यीशु भी प्यार है। When we read that God is holy, Jesus is also holy. जब हम पढ़ते हैं कि जो खुदा है वो मुकद्दस है, तो यीशु मसीह भी खुद मुकद्दस है। When we read that God is true, Jesus is also true. जब हम पढ़ते हैं कि खुदा सच्चा है, तो यीशु मसीह भी सच्चा है। And when we read that God hates sin, Jesus also hates sin. जब हम पढ़ते हैं कि खुदा नफरत करता है गुनाह से, तो यीशु मसीह भी गुनाह से नफरत करता है। And then He also upholds the universe. और जैसे कि खुदा ने तमाम दुनिया को बनाया, Upholds the universe means that if it wasn't for Jesus Christ, this entire universe would just break down and fall apart. अगर ये यीशु मसीह के लिए ना होता तो ये दुनिया तबाह कर दी गई। In Colossians 1:17, it says, "And He is before all things, and by Him all things consist." कुलसियों की किताब पहला बाब और 17वीं आयत। और वो सब चीजों से पहले और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं। हमें So again, He sustains, He maintains, He makes sure that everything is functioning. खुदा एक ऐसी शख्सियत है जो कि तमाम चीजों को कंट्रोल करता है, तमाम चीजों को चलाता है कि वो ध्यान से अपने अपने काम पे चलती रहे। Now think about this. There's plenty of people in this world that do not believe in God. आप इस बात को सोचें कि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो कि किसी भी खुदा पे यकीन नहीं रखते। And the Bible says they will be judged. और कलाम कहता है कि उनका फैसला होगा। But as they face God in the judgment, they may say, "I never knew you existed." और हो सकता है कि जब उनका फैसला किया जा रहा हो वो कहें कि मैंने कभी सुनने को नहीं मिला खुदा कौन है। And simply Jesus would have to say, "Well, what held the molecules of your body together? What kept the cells working?" जो और खुदा उनसे पूछ सकता है कि तुम्हारा जो खून है, तुम्हारे शरीर में जो बदन में खून है, वो कौन चलाता है? And at that moment, they would have to admit that God, Jesus Christ, does that. और उस वक्त वो मानेंगे कि यीशु मसीह खुदा है। Jesus sustains and maintains everything. यीशु मसीह तमाम चीजों को चलाने वाला है। And one other aspect of that is that Jesus directs
all things to fulfill God's sovereignty. और जो यीशु मसीह चला रहा है इस दुनिया में वो सिर्फ खुदा की जो शख्सियत है उसको बयान करने के लिए चलाया जा रहा है और जो होने वाला है उसे पूरा करने के लिए। We read that and it says by the word of his power. जैसे कि हम पढ़ते हैं कि उसके कलाम की ताकत से। Can you imagine God spoke everything into existence? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि जो खुदा ने बोला वो पैदा हुआ? Have you tried that recently? क्या आपने कभी सोचा है इस पे? Have you tried to speak something into existence? क्या आपने कभी कुछ बोला है और वो चीज पैदा हो गई है, बन गई है? You can't do it. आप इसका नहीं कर सकते। You don't have the power. आपके पास ताकत नहीं। But God speaks and it comes to be. लेकिन खुदा बोलता है और जो बोलता है वो पैदा हो जाता है। Jesus Christ being the creator. यीशु मसीह एक चीज बनाने वाला है। We know that because in John chapter 1 verse 1 it tells us that Jesus is the Word of God, the creator. जैसा कि इसके बारे में हमें मिलता है यूहन्ना पहला बाब पहली आयत। खुदा ने कलाम का और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा का। What do we say? Jesus Christ created it all. He spoke it into existence. क्या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये तमाम चीजें बनाई? Now that's power. ये takat की वजह से थी। It continues. It says, after making purification for sins. और हमें आगे After making purification for sins. This is chapter 3. Part of chapter 3. I'm sorry. Verse chapter 3. I'm sorry. Chapter 1. जैसा कि हमें यूहन्ना पहला बाब तीसरी आयत में मिलता है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। So what does it take to purify our sins? कि हमें अपने गुनाहों को खत्म करना चाहिए। Well, again, in the Old Testament, they had to sacrifice animals. पुराने आयत में हमें मिलता है कि पहले जो लोग थे वो कुर्बानियां चढ़ाते थे माफ करवाने के लिए। Why is it that we as Christians no longer have to sacrifice animals? हम एक मसीह होते हुए क्यों नहीं किसी जानवर की कुर्बानी चढ़ाते? Because Jesus Christ was our sacrifice. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। We call that the substitutionary atonement. हम इसे कहते हैं एक कुर्बानी। In other words, He bled for us. कि हमारे किसी के लिए आप अपने आप को कुर्बान कर दो। His blood covered our sin. जो यीशु का खून है उसने हमारे गुनाहों को खत्म कर दिया है। He was the last and final sacrifice. ये आखिरी कुर्बानी थी। And His blood purified us or purified our sin. और उसका खून हमारे गुनाहों को खत्म करता है, हमें पाक करता है। And lastly, it says He sat down at the right hand of the Majesty on high. तो तीसरी आयत में मिलता है कि वो आदमी बाला के दाहिने हाथ पे बैठ गया। You probably know that the right hand signifies a place of power. जैसे कि हम जानते हैं कि जो सीधा हाथ होता है ताकत को बयान करता है। Signifies authority and honor. एक ताकत को एक हुकूमत को बयान करता है। So again, here we see Jesus Christ has all of the authority, receives all of the honor in the place of God. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो दाहिने हाथ बैठ के जो तमाम खुदा की अथॉरिटी है, ताकत है, उसका हिस्सा बन गए हैं। He sits at the right hand of God. यहाँ पे लिखा गया है सीधा हाथ। What is the sitting down? What does that represent? बैठ जाना, इससे क्या मुराद है? It symbolizes completeness, fullness. ये हमें बताता है जो होना था वो मुकम्मल होगा। In the Old Testament, the high priest, after they gave the offering, the animal, after it was sacrificed, they never sat down. और पुराने नियम में मिलता है जो बड़े पादरी होते थे उस जमाना के, जो लीडर होते थे, रहनुमा होते थे, वो कुर्बानी चढ़ाते थे। Why? Because the sacrifice was simply a symbol. इसलिए कि वो एक निशानी थी। It wasn't complete until Christ sacrificed Himself. वो तब तक मुकम्मल नहीं हुई कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पे जान दी, ये तब मुकम्मल हो गया था। उसके बाद किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। So the blood of bulls and goats, they didn't truly take away sin. जो बैल और भेड़ों के जो खून था, वो उसकी हमें अब जरूरत नहीं। But the blood of Jesus Christ
takes away sin. क्योंकि जो यीशु मसीह का खून बहा था सलीब पे, उसने हमारे गुनाह खत्म कर दिए। And so that's why Jesus Christ sat down, because after he gave himself for sin, it was complete. और इस वजह से तीसरी आयत में जो लिखा है कि वो दाहिने हाथ पे जा बैठा, इससे मुराद है कि जो होना था, जो गुनाह हमारे लिए, जो हमारे गुनाह थे, उसने जान दे के सलीब पे खत्म कर दिए गुनाह, और जो मुकम्मल कर दिया, और दाहिने हाथ पे जाके बैठ गया। Jesus said that, remember on the cross, he said, "It is finished." और यीशु मसीह ने कहा कि खत्म हो गया, It was done. फिर मुकम्मल हुआ तमाम, Sacrifice was complete. जो कुर्बानी थी वो मुकम्मल हुई, Because God laid the iniquity of all of our sin on Jesus Christ. क्योंकि जो खुदा ने हुक्म था कि खुदा का कि जो हमारे गुनाह हैं वो इस यीशु मसीह के वसीला से ही खत्म किए जाएं। The full wrath of God on Jesus Christ because of our sin. जो गुस्सा था हमारे गुनाहों का, वो खुदा ने यीशु मसीह के जरिए खत्म कर दिया। And this is why we say that God has full supremacy. इस वजह से हम कहते हैं कि यीशु मसीह तमाम इख्तियार रखने वाला है। This is why we say that Jesus Christ is most excellent. इस वजह से हम कहते हैं कि यीशु मसीह की शख्सियत सबसे बेहतरीन शख्सियत है। And I'm hoping after this evening that when we look on Jesus Christ, that we see Jesus Christ in more fullness. और मैं सोच रहा हूँ कि जब हम शाम में जब हम खुद एक एक करके यीशु मसीह पे नजर करेंगे, तो आप भी अपने गुनाहों का कफारा यही जानेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सजा खुद ले ली। Jesus Christ fulfilled everything in the Old Testament. यीशु मसीह ने जो पुराने अहद में कहा गया था वो मुकम्मल किया। Remember, he lived in a sinful world. एक सादी जिंदगी जी, He followed the law perfectly. कानून की पैरवी की, Never sinned. कभी भी गुनाह नहीं किया, Was a perfect representation of बहुत God. अच्छी शख्सियत थी खुदा की, And then died on the cross for our sins. और हमारे लिए सलीब पे जान दी हमारे लिए। So, I'm hoping again that we, together as a Christian community, can look on Jesus Christ in fullness and honor and all of His glory. मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप एक मसीह बरादरी होते हुए आप सब भी यीशु मसीह को एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पे जानेंगे। I want to thank you again for allowing me to come. मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे आना पैगाम सुनाने का मौका दिया। And I want to say it's a real joy to watch you worship. और मुझे बहुत मज़ा आया आपको इबादत, आपको परस्तिश करते देखते हुए। And whenever true Christians come together in worshiping Christ, it is a joyous thing. और जब सच्चे मसीह इकट्ठे होते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, तो ये बहुत खुशी वाली बात होती है। And although I do not understand any of the Urdu language, बेशक मैं उर्दू ज़बान नहीं जानता, if I was walking by the street here and I looked in here, I could tell that you were worshiping God. अगर मैं सड़क के किनारे चल रहा होता तो मैं अगर देखता तो मैं कह सकता था कि आप परस्तिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। And that is one thing as well, what was just said, when we had the song, Hallelujah, Hallelujah, I could join in. और जब आप हालेलुया हालेलुया का कोर्स गा रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, Because we worship the same Savior. क्योंकि हम सब बेशक ज़ुबानें मुख्तलिफ होते हैं लेकिन एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं, We honor the same God. हम एक ही खुदा की इज्जत करते हैं। God bless you all. खुदा आपको